ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے ایک شخص ہم سے پردہ کر گیا، جس کا مکان گلی قاسم جان دلی میں تھا۔ اس شخص کو دنیا مرزا اسد اللہ خان کے نام سے آج بھی یاد کرتی ہے۔ مرزا غالب نے اپنے بارے میں کہا ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ اور فیض احمد فیض نے کہا کہ 18ویں صدی میر تقی میر کی صدی تھی، 19ویں صدی مرزا غالب کی صدی تھی، اور 20ویں صدی علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی صدی تھی۔ بھارت میں صرف 2 کتابیں صحیفوں کا درجہ رکھتی ہیں، ایک تو مقدس وید اور دوسری دیوان غالب۔ یار برا سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور بھی دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں۔ اور غالب کو اپنی فارسی شاعری سے عشق تھا، اور دنیا ان کی اردو شاعری کو ہر صدی کی شاعری سمجھتی ہے، لیکن غالب کے خطوط کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے خطوط کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ کھڑکی سے لگے بیٹھے ہیں اور سامنے کا منظر فلم کے پردے کی طرح آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ اس منظر پہ آپ کبھی تالیاں بجاتے ہیں اور کبھی آنسو بہاتے ہیں۔ ہائے سرود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ ناظرین، اس سائنسی دور میں خط کی جگہ ای میل، ٹیکسٹ اور ٹویٹر نے لے لی ہے۔ مرزا نوشد نے مجھے ایک مراسلہ بھیجا ہے ٹیکسٹ کی شکل میں، اس کی ایک جھلک ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اما حق صاحب، یہ کون سی محفل ہے اور کس کا ذکر ہے؟ جانے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ ہم نے سنا ہے ہماری غزلیں ہر وہ شخص گا رہا ہے جس کا نہ تو تلفظ صحیح ہے اور نہ ادائیگی، ڈکشن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ شاعری سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاعری بھی اب اہل زبان کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ فراز، فیض، قتیل اور ابن انشاء وغیرہ اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ ہم نے سنا ہے ہماری غزلیں عابدہ پروین بھی خوب گاتی ہیں، اور پریانکا چوپڑا بھی گاہے بگاہے ہمارا ذکر خیر کرتی رہتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ہمارے باپ دادا بھی فوجی تھے، آج ہم پاکستان میں ہوتے تو صدر مشاعرے کی جگہ صدر مملکت ہوتے۔ بڑا
کر لیتا ہوں کبھی کبھی، چھٹتی نہیں ہے منہ سے کافر لگی ہوئی. یہاں تو دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، لیکن کلی قاسم جان کے چھجو میاں کی بھٹی برابر یاد آتی ہے. اکبر الہ آبادی سے اکثر ملاقات رہتی ہے، کہہ رہے تھے واپس جانے کی بالکل خواہش نہیں ہوتی کیونکہ میں الہ آباد سے آیا تھا، پریاگ راج سے نہیں. ناظرین، آپ کو شاید خبر ہوگی، علم ہوگا کہ الہ آباد کا نام پریاگ راج کر دیا گیا ہے. جہاں نثار اختر سے اکثر ملنا ہوتا ہے، سنا ہے ان کے صاحبزادے جاوید اختر میاں بھی شعر کہنے لگے ہیں. شاید جاوید اختر میاں داشتہ آیت بکار کی مستاق زندگی گزار رہے ہیں، یعنی رکھی ہوئی چیز کام آ ہی جاتی ہے. اچھا ہوا کہ ہماری فاقہ مستی رنگ لائی اور ہم چلے آئے، ورنہ آج کل کے غزل گانے والے اپنے الفاظ کی ادائیگی اور تلفظ کی بے حرمتی کی وجہ سے ہماری موت کے ذمہ دار ہوتے. گلزار میاں نے مجھے دوبارہ زندہ کیا، ان کو ہماری بہت بہت دعائیں. گلی قاسم میں جو ہمارا مکان ہے اس کا آدھا حصہ سرکار کی حراست میں ہے اور آدھا حصہ پی سی او یعنی پبلک کال آفس کی گرفت میں. منی بیگم کو ہمارا بہت بہت پیار کہیے گا. وہ سینئر سٹیزن ہونے کے باوجود منی کی منی ہی رہی. ہمارا ای میل کا پتہ ہے sharabtahura@hotmail.com. ہاٹ میل میں اسپیلنگ کا خیال رکھے، HOTMALE لکھیے گا. مرتی ہوئی زبان کو ٹیوب سے غذا دی جا رہی ہے. بہت جلد ٹیسٹ ٹیوب شاعروں کا رواج عام ہو جائے گا. نور جہاں کی گائی ہوئی میری غزل مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے کی CD ضرور بھیجیے گا. اگر جنت الفردوس سے نکالا گیا تو زمین پر آپ سبوں سے ملاقات ہوئی. سبوں سے ملاقات ہوگی اس لیے کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے. آپ کا اپنا کبیر الملک مرزا نوشا اسد اللہ خان غالب. ناظرین السلام علیکم، معافی چاہتا ہوں دیر ہوگی، لیکن اس وقت ہم آج مرزا اسد اللہ خان غالب کی یاد منا رہے ہیں، اور اس خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں جناب سیف الہدا ہاشمی صاحب اور مصباح الحق صاحب آن لائن، اور مریم خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ناظرین ہم سب کا سلام قبول کیجیے. سیف الہدا ہاشمی صاحب، سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت اچھا انتظار پیش کیا ہمارے کرم فرما نے، اور ایک جھلک ان کی دیکھنے کو. جی بہت شکریہ. مصباح الحق صاحب سن رہے ہیں آپ؟ پلیز. آداب حضور. جی آپ نے غالب کو دوبارہ زندہ کیا، ایک تو گلزار صاحب نے کیا پھر آپ نے کیا، اور بڑا اچھا لگا مجھے. اور مریم خان کو دیکھ کے، آپ کو دیکھ کے اور سیف صاحب کو دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے اسکرین پہ. جی. اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بھی جو ہے آپ کی محفل میں بنفس نفیس موجود ہیں. بے شک بے شک. ہاشمی صاحب کا تھوڑا تعارف، ہاشمی صاحب تھوڑا سا آپ اپنا تعارف کرائیے گا. ویسے میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ
کو پہلی دفعہ جب دیکھا تو دور سے مجھے یہی لگا کہ غالب صاحب جو ہیں چلے آ رہے ہیں. اور تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا. شکریہ ارشد صاحب. جی حقیقت میں جب ہم اپنے ملک سے جلاوطنی ہم نے اختیار کی تو یہاں پر تو معاش کی تدبیر میں چل جاتے ہیں بہت دریا. جی لیکن جب کچھ ہم لوگوں کو فرصت ملی ہمیں دورہ سے تو پھر ہم نے مشاعرے میں پہلے تو شرکت کرنا شروع اور اس کے بعد خود مشاعروں کا اہتمام کیا. جی اور اب سال سے میں حصہ ہوں ان لوگوں کے ساتھ کراتا رہتا ہوں. جی آپ نے دیکھا ہو آج کل محبان اردو نام کی تنظیم سے وابستہ ہوں. بے شک. انہوں کام غالب بھی اور تمکین انداز میں ادھکتر افادہ پہنے ہوئے اور اس میں جسوندر سنگھ صاحب نے جو کہ جگجیت سنگھ کے شاگرد ہیں جی گھر پہ گائی تھی علامہ طارق صاحب. صحیح. اور وہ پروگرام تو ہم کووڈ سے پہلے ہر سال ایک دورہ کرتے ہیں جس میں ہندوستان سے آئے ہوئے شعرا سب کچھ مقامی شعرا کو موقع دیتے اور اس طرح سے ہم نے خدمت کو جاری رکھا ہے اور صحیح ہے. صحیح ہے. مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ کا جو شروع کا دور تھا ان کے والدین کا پھر ان کا پرورش پانا اس پہ تھوڑی سی روشنی اگر آپ ڈال سکیں تو. جی بہت شکریہ. جی اسد اللہ بیگ خان پورا نام جی مرزا غالب کا تھا. جی ان کے دادا مرزا خان بیگ سمرقند سے ہندوستان تشریف لائے تھے. اچھا. یہ لوگ نسل جب وہاں کے حالات خراب ہوئے تو انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا. جی پہلے یہ دور آئے اور ارشد کے مغلوں کی وہ شان نہیں رہی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا راستہ بنایا اپنایا اور سپاہ گری کی خدمات پیش کی. ٹھیک ہے. اور مختلف جگہوں میں کامیاب بھی رہے. صحیح. ان کے صاحبزادے عبداللہ بیگ اثر اور مرزا غالب صاحب کے والد تھے. وہ بھی اپنے بابا کی پاس جدت کے غالب صاحب نے کہا ہے مرزا غالب نے فرمایا کہ اپنا سپاہ گری کی شاعری بھائی سے عزت نہیں تھے. وہ سپاہ گری میں تھے اور 30 سال کی عمر سے کم کا وقت تھا جب وہ ایک حکومت کی ایما پر محصول وصول کرنے زمیندار کے پاس تھے. جی اور وہاں ایک چھوٹی سی جھڑپ میں آپ کو گولی لگی اور وہ جاں بحث ہو گئے. اور غالب صاحب کی پرورش پھر ان کے چچا نے نصر اللہ بیگ صاحب نے سنبھالی. جی پیدائش تو مرزا غالب کی 1797 دسمبر ہے لیکن انتقال ان کا ہوا مغل شہنشاہ کی جلاوطنی کے چند سالوں کے بعد یعنی 1868 دہلی میں ہوا تھا. جی. اور جس حویلی کا ذکر ابھی ہم نے سنا جہاں وہ سکین ہیں وہ اصل میں ان کے سسر جی. اچھا. ان کا نام تھا بخش خان. جی دوبارہ بولیے گا. الہی بخش خان. الہی بخش خان. جی. انہی کی حویلی میں آپ کو دفن کیا. آپ سب جانتے ہیں کہ اردو فارسی نظم اور نثر میں مرزا غالب نے جو خدمات کی اس کا کوئی بدل آج تک ہندو پاکستان میں پیدا نہیں. بس 15 سال کی عمر سے تاریخی ہو گئی. جی. اور اردو زبان میں پہلا دیوان ان کا
1841 में आया था, जी 160-70 के मुकदमे था। दूसरा दीवान 1845 में जी और आप दीवान उस वक्त की आयात में 1863 जी आया और बहुत मशहूर हुआ। लेकिन उनकी जिंदगी के बाद, उनकी वफात के बाद, उनकी जिंदगी खत्म होने के बाद, मेरा मतलब है वफात के बाद लोगों ने उनकी कदर महसूस की, क्योंकि अक्सर हमारी वालों का सेवा तो लाबादा उनकी एडिशन निकले जी और हुदूद की अलहदा किताब नवाज सरोश मजमुआ कलाम भी रहा, कुलियात तारीफ कर लीजिए उससे आप। तो इस तरह से ये शायर आजम जिनके बारे में भी आपने सुना था कि 20वीं सदी के शायर आजम हमारे अल्लामा इकबाल साहब थे जी 19वीं शायर आजम अल्लामा मिर्जा असदुल्लाह खान जी और उससे पहले बाबा सुल्तान मीर फकीर मीर को शायर आजम कहा। जी जी अपनी में मीर फकीर मीर ने जब इनका कलाम देखा तो ये उस वक्त बहुत कमसिन थे, तो मीर साहब ने तबसरा किया था कि लड़के को अगर कोई सही उस्ताद मिला ये बहुत, और हम जानते हैं तो ऐसा ही मेरी तरफ से एक छोटा सा तारीखी जो मैंने पेश कर दिया है। जबरदस्त, कहने तो बहुत सी चीजें सुना सकता हूँ। नहीं बहुत अच्छा है। अच्छा आप लोग पसंद करेंगे अगर थोड़ी सी मैं गालिब मिर्ज़ा गालिब का थोड़ा सा कलाम मंजूम शक्ल में, हमारे दोस्त हैं, मेरे पास रिकॉर्डेड मौजूद है, तो मैं पेश करूं थोड़ा? जरूर समाअत फरमाइएगा। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादा ख्वार होता। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना गर्क़ दरिया, न कभी जनाज़ा उठता, न कहीं मज़ार होता। मैं मरियम खान से पूछ रहा था कि अगर साहब जान उस वक्त जो मिर्ज़ा गालिब के साथ साथ उनके हम असर शोरा थे, जिनमें उस्ताद ज़ौक़ और मोमिन ख़ान मोमन, उनका कलाम भी गाती तो आज वो शोहरत की बुलंदियों पे होती, साहब जान की जगह जाने जहाँ होती। क्या कहती हैं आप? आपकी बात सही है, बट मेरे ख्याल में साहब जान तो सिर्फ यही जवाब देती, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब,
तुझे हम वली समझते जो न बादा ख्वार होता। आप थोड़ा जान के लिए कुछ अशार है। जी 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 अगर आप चूंकि साहब जान का ने जो लिबास जेब तन किया है माशाअल्लाह, वो मरियम खान ने उसको बहुत अच्छे से निभाया है। बहुत और शुक्रिया। आप बहुत मुनासिब शख्सियत को पर्दे सीमी पर लाए, पर्दे स्क्रीन पर लाए। एक तो हमारे सैफ साहब, दूसरे साहब जान साहिबा, और इनका जो पैकर है उसको देखकर मैं यही कहूंगा कि मुस्कुराओ, बहार के दिन है। वाह 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 मुस्कुराओ, बहार के दिन है। जी गुल खिलाओ, बहार के दिन है। वाह और दुख्तराने चमन के कदमों पर सर झुकाओ, बहार के दिन है। अरे मैं नहीं है तो अश्क गम ही सही, वाह मैं नहीं है तो अश्क गम ही सही, पी ही जाओ, बहार के दिन है। वाह। तुम गए तो रौनक़े बहार गई, वाह तुम गए तो रौनक़े बहार गई, तुम न जाओ, बहार के दिन है। तुम न जाओ, बहार के दिन है। हाँ कोई वारदाते सागरों में कुछ सुनाओ, बहार के दिन है। जी माशाल्लाह साहब जान का जो किरदार अदा किया मरियम खान ने, वो बिल्कुल मुकम्मल है। और मैं इसकी मुबारकबाद आपको भी और साहब जान को भी देता हूँ जो आज मरियम खान नहीं लग रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नहीं शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत शुक्रिया एक तो स्टूडियो आने को, ये प्रोग्राम करने को, और नहीं, सैफ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। गालिब पर हाँ जो है रोशनी डालने का और उनके बारे में बातें करने का। अगर वो अरशद ऐवान साहब, अगर आपकी इजाजत हो जी तो कल गुजरा है यौम खवातीन का आलमी दिन था। जी 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 और आपके यहाँ ये साहब जान भी आई हुई हैं और मरियम खान भी। तो इनकी शान में मैं कुछ अशार जो जहन में आते हैं जी 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 वो मैं पढ़ना चाहूंगा। जी जी इरशाद। हाशमी साहब समाअत फरमाइए जी। हाँ जी सैफ हाशमी साहब, आपकी इजाजत अगर है तो मैं पढ़ता रहा हूँ कि ख्वाब जितने भी देखे गए, जी फूल शाखों पे जितने भी खिलते रहे, वाह नई मंजिलों की तरफ जितने रास्ते गए, उनमें शामिल थे हम। वाह आज भी खुशबुओं की तरह उनमें शामिल हैं हम। जिंदगी तेरा हासिल है हम। वाह। और शब से लड़ते हुए, दिन से उलझे हुए, जाने कितने ही मौसम बदलते रहे, वाह। अपने आंचल में दुख सुख समेटे हुए, सुबह तक हम अंधेरों से लड़ते रहे, हर कदम राह रोके हुए, एक नादीदा दीवार थी फिर भी चलते रहे, गीत जितने भी लिखे गए, लफ्ज जितने मोहब्बत के सोचे गए, उनमें शामिल थे हम। आज भी खुशबू की तरह उनमें शामिल हैं हम। जिंदगी तेरा साहिल है हम। अपनी मिट्टी के रंगों से लिखी हुई एक ताजा कहानी का उन्वान है। इस कहानी में जितने भी किरदार हैं उनके आपस में कुछ अहदो पैमान है। रोशनी के उफ़क़ पर बुलंदी को छूते हुए ख्वाब सब अपनी पहचान है। राहरो जितने आगे आगे गए, राहरो जितने आगे गए जी बढ़ते गए, उनमें शामिल थे हम। आज भी खुशबुओं की तरह उनमें शामिल हैं हम। जिंदगी तेरी महफिल है हम। और मरियम खान साहबा, आपके अहले खाना को, तमाम जो ख़वातीन सुन रही हैं उनको भी कल जो गुजरा यौम ख़वातीन आलमी दिन जो था वो सब बहुत बहुत मुबारक हो। और हर आने वाला दिन आप यही कहें कि जिंदगी तेरा हासिल है हम। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लाइन पे मीर साहब शायद आए हैं। मीर नासिर साहब, हेलो।
جی السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा जा रहा है. मैं आपके मेहमान शायर साहब को ये सुना रहा, ये उनकी नजर कर रहा हूँ. ये शेर हाशमी साहब की नज़र. अच्छा, मुस्बा साहब को, मुस्बा साहब को. अच्छा इरशाद इरशाद जी इरशाद. जी, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, वाह. कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है. इसलिए ये कल के दिन की बात कर रहे थे ना मुस्बा साहब. जी 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 जी. जो जी, मैं कुछ तो है जो मैंने जिसकी सुना. पर्दादारी है. जी जी, जी 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 जी. आप वो पढ़. आगे गालिब साहब का अगला शेर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि होगा कोई ऐसा भी जी, कि गालिब को न जाने. वाह वाह वाह. होगा कोई ऐसा कोई भी. ऐसा भी हम्म कि गालिब को न जाने. शायर तो बहुत अच्छा है पर बदनाम बहुत है. बदनाम बहुत है. बदनाम बहुत है. बुद्धि भर के हो लिए बदनाम. बदनाम बहुत है. गवाजी का. मुस्बा साहब, जी मुस्बा साहब, जी जी उनका तीसरा शेर सुना के आपसे इजाजत चाहूंगा. जी जी, जी जी इरशाद. कोई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है. वाह वाह वाह. कोई मुद्दत हम्म, के गालिब मर मर गया पर याद आता है. जी, पर कहना कि यूं होता तो क्या होता. क्या होता. वाह 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 वाह. वाह. तो मैं आप तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि आप वापस गालिब जंक्शन पे आ जाएं जी, और जी. उनकी पटरी पे कर दें. नहीं, वो आज़ाद असल में अशार इसलिए सुनाए कि वो वजह बतानी पड़ी कि मैं देर क्यों हो गई थी. तो अच्छा हाँ, अच्छा. उस चलिए, कोई बात नहीं, देर भी हो जाती है. जी जी, देर भी हो जाती है. बड़ी मेहरबानी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, देर तो कुछ लोगों को हुई है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ पर मौजूद हूँ. क्या बात और है. प्रोग्राम जो है बहुत सही. बाकी हाशमी साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं कि हाशमी साहब माशाल्लाह से शेर व शायरी में उर्दू अदब से इनका ताल्लुक लगाओ जी बहुत ही पुराना और बहुत ही ज्यादा है. और खास तौर पे मिर्जा गालिब या मीर तकी मीर या इकबाल, हाशमी साहब का एक अपना अंदाज है इनके शेर सुनाने में. अगर आज वो कुछ इनमें से किसी शायर का कोई कलाम सुना दें तो इनकी मेहरबानी होगी. हाशमी साहब, हाशमी बहुत साहब, मेहरबानी. जी जी, आप कुछ फरमाइश पूरी कीजिए. मीर साहब ने कहा कि थोड़ी सी आवाज बढ़ा के थोड़ा बोलिएगा. जी जी, इश्क मुझको वहशत सही. वाह. इश्क मुझको वहशत सही. वहशत तेरी शोहरत सही. वाह. हम भी तस्लीम की उड़ाने हम तस्लीम की उड़ाने बेनियाजी तेरी आदत थी सही. वाह 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 वाह. वाह. बेनियाजी. वाह वाह तेरी वाह. आदत ही सही. तेरी आदत बहुत ही सही. खूब. बहुत खूब. इस वक्त अरशद हुसैन साहब लाइन पे हैं. आप सब की इजाज़त से अरशद साहब आप कुछ अशार थोड़े गुनगुनाएंगे. जी जी जरूर. ये मेरे लिए इज्जत अफजाई है जनाब. आप जैसी शख्सियात के दरमियान मौजूद होना और फिर उस पर गालिब का कलाम. और आज जो हमारे दरमियान जो एक नई कहना चाहिए कि एंट्री हुई है साहिब जान की, जी, वो सबको मुबारक हो. जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह. माशाअल्लाह. चश्मे बद्दूर. चश्मे चश्मे बद्दू. अच्छा. ये साहब जान का बचपन है. बहरहाल ये देखिए गालिब तो यकीनन जबरदस्त हैं. उनकी ये गजल बड़ी मशहूर है. जमाना गजल और बाजी पे अटफाल है दुनिया मेरे आदमी. दुनिया में अगर आप लोग इजाजत से. जी जी, इरशाद. बाजी चाहे अटफाल है दुनिया मेरे आगे. होता है शबो
तमाशा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है, होता है निहा दर्द में सहरा मेरे होते, वाह, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त. बाजी चले अतफाल है. और ये लास्ट मन तो यकीनन जी. अपने अंदर बहुत कुछ रखता है. जी जी. गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है. जी जी जी, बेशक बेशक बेशक. गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है. रहने दो अभी सावरो मीना. मीना मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, बहुत थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया. दोबारा मेरी तरफ से सबको सलाम दोबारा. वालेकुम और अस्सलाम. अगर आप लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पास गजल में तो कुछ और भी हैं. अच्छा, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन वाह 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 वाह, वाह. दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. वाह. और मरियम साहबा के लिए और साहब जान के लिए है कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, वाह क्या बात उसी है. को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले. जिस काफिर पे. और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले. और उनको देख के यही कहा जाता है कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है. वाह 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 वाह. इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, वाह वाह और वाह. दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना. दर्द का हद से गुजरना गिरफ्ती है. हमारी किस्मत के वैसाले यार होता, ओए होए होए अगर होए. और जीते रहते यही इंतजार होता. और अरशद साहब रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही न टपका. रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं नहीं कायल. कायल. और मरियम साहबा जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू लहू क्या है? हैं? हर एक बात कुछ से. तो खुदा था, जी. कुछ न होता तो खुदा होता. दबोया मुझको. बोया मुझको होने ने न होता न होता मैं तो क्या होता. वाह. और रंज से खूगर हुआ इंसान तो तो मिट मिट जाता है रंज. मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी क्या सा हो गए. अरशद साहब आप सुना. जो देर का जो ये कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो देर पर आप बिल्कुल अब गौर नहीं करें, इसलिए कि गालिब ने यही कहा था कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी क्या सा हो. बिल्कुल. आखिर में साहब जान भी आ गई, हाशमी साहब भी आ गए, जी. हम भी टेलीफोन पे आ गए. जी. और इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे पाए तकमील तक. और भी मैं कहते हुए आखिरी शेर के मोहब्बत में नहीं है फर्क जी. जीने और मरने का. क्या बात है. मरियम जान सुनिए जरा ध्यान से जी जी. कि मोहब्बत में नहीं है फर्क
जीने और मरने का उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर वे दम निकले। वाह वाह वाह, ये बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, बहुत अच्छा माशाल्लाह। आपने बहुत शहबाज पेश को दू किया और रफ्तार हफीज को मौजूद है स्क्रीन पे जी जी और उनकी जो ये मुझे मजबूर कर रहे हैं अब आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम को, तो मैं नज़्मिया अंदाज में जी एक गालिब की गजल पेश करना चाहूंगा, इजाजत जी। है? ये हाशमी, जो है वो उनके मरियम साहबा के नाम कीजिएगा, साहब जान के नाम, ये उन्हीं को मैं कह रहा हूँ, इसमें लुत्फ आएगा। उन्हीं अब ये मैं डायरेक्ट तो नहीं कह सकता हूँ, इनडायरेक्टली कह रहा हूँ सब कुछ। नहीं, उनको देख के तो मैं इसी से काम चला लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए वो कहते नहीं, हैं बहुत अच्छा है, कहते हैं बहुत जी जी माशाल्लाह। माशाल्लाह कहते कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब में, वाह कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब में, शब हाय हिजर को भी रखूं घर हिसाब में, मुझ तक कब उनकी बातों में आता था दौरे जाम, मुझ तक कब उनकी बातों में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। शराब में। और ये शेर आगे के लिए है, जी कासिद के आते आते क्या बात है, खत और लिख रखूं, कासिद के आते आते खत और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में, कब से हूँ क्या बताऊं जहाँ ने खराब में। जबरदस्त है। अच्छा यहाँ पे बहुत उम्दा ये अभी जो आपने बात की कि मुझे पता है कि वो क्या लिखेंगे जवाब में, और फिर तुझे हम वली समझते जो न बादा खार होता, उनके वली होने पे सैफ साहब आप कुछ थोड़ा रोशनी डालेंगे कि गालिब जो है वो सिर्फ अब शायर ही नहीं, वो बड़े तसव्वुफ की बातें किया करते थे। उनके अशार में बहुत से अशार ऐसे अच्छा एक सेकंड, ये किसी का टीवी ऑन है पीछे, तो उसकी वॉइस जरा लो कर दीजिएगा आप प्लीज, तो ताकि सैफ साहब की बात हम सही सुन सकें। जी जी सैफ साहब दोबारा प्लीज। उनके बहुत से अशार मजहबी फिलॉसफी पर भी मबनी है। ठीक है। और इसी वजह से उन्होंने अपने शेर में कहा है कि तुझे हम वली समझते जी जो ना बाद अखार होता। बेशक। तो बेशक बाद खारिश की वजह से वो खुद इस बात का मलाल करते हैं, लेकिन बहुत से अशार हैं इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहे हैं, नहीं बड़े अच्छे अच्छे असूलों वाले थे। मुझे याद है कि जब उनको उनके एक दोस्त ने उनको मुलाजमत के लिए दरबार की तरफ भेजा, तो आप वापस चले आए और फिर बाद में बताया कि मैं वहाँ कोई क्योंकि आपका इस्तकबाल करने कोई नहीं आया, तो आपने फरमाया कि मैं तो वहाँ पे एक उस्ताद की हैसियत से गया था, इसलिए नहीं कि वहाँ कोई नौकरी करने जाऊँ। तो उन्होंने मुझे वो इज्जत नहीं दी। तो इस बहाने देखिए गालिब हमें अपने रुतबे का एहतराम और इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट का दर्स दिया उन्होंने, है कि नहीं? ये शेर भी तो पढ़ा कि बना है शहर का मुसाहिब फिरे है इतराता, जी जी, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ये ये भी है कि न था कुछ तो खुदा का, कुछ न होता तो खुदा होता। जी बेशक बेशक।
ये जो है यानी खुदा के वजूद के लिए एक बड़ी बात है चली। जी बेशक बेशक बेशक। तो अरशद हुसैन साहब कुछ और है? जी देख रहा हूँ, और ये जो है ये तो अभी उसका एक शेर जनाब सैफ साहब ने भी इरशाद फरमाया है जी। तो ये आप लोगों को अगर गालिब सब ने देखी है तो वो मिर्जा ज़ौक़ के ऊपर जो तनकीद करते हैं गालिब, जी। बना है शहर का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो इसको उन्होंने जब दरबार में पेश किया तो यूं पेश किया उन्होंने। जी इरशाद करता हूँ मैं आप लोगों की इजाजत से। जी 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 इरशाद। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। जबरदस्त, वाह शुक्रिया। तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। क्या बात है, क्या बात है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वाह। जला है जिस्म जहां दिल की जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जो क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। बहुत बहुत खूब। मैं आप सब मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास सैफुल हुदा हाशमी साहब जो गालिब नुमा शख्सियत गालिब की याद मनाने के प्रोग्राम में आप रौनक अफरोज़ हुए। और मिसबाहुल हक साहब आपने बड़ा अच्छा कलाम सुनाया। हमारी किस्मत के वैदान यार होता। वाह वाह वाह। और गालिब ने जाते जाते यही कहा कि इसने गालिब ने कम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम किए। बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब, मोस्ट वेलकम। हाशमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी मरियम खान साहबा का तो बहुत ज्यादा ही शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, वो बहुत आई और उन्होंने इस महफिल को रौनक बख्शी साहब जान ने, और हम बहुत लुत्फानंदोज हुए। बहुत शुक्रिया और सबों का बहुत शुक्रिया आप सबका। अरशद हुसैन साहब लोगों का बहुत मशकूर हूँ जनाब। प्रोग्राम को मुनज़्ज़म करने पर मैं मुबारकबाद देता हूँ अरशद साहब को, जी आवाम साहब को। बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी मौके पे ये सिलेक्शन किया मरियम खान को महफिल में लाने का, जी, और बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा है। जी जी बेशक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जीने की कदर जौहरी पहचान सकता है। सैफ साहब को बिल्कुल ला करके आपने वैसे मिर्जा गालिब की अच्छी खासी लुक फराहम कर दी गालिब प्रोग्राम में। मैंने अब तक गालिब को देखा नहीं था, लेकिन अब पता चल गया गालिब कैसे दिखते हैं। जी हाशमी साहब को देख के। जी चलिए आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और थैंक यू नाजरीन से भी हम इजाज़त चाहते हैं। और ये प्रोग्राम बताता चलूँ कि हम एवरी ट्यूसडे, अदरवाइज़ ये आज थोड़ी डिले हो गई थी और देर की वजह भी मैंने एक नज़्म में सुना दी, लेकिन ये है कि
ایوری ٹیوزڈے 8 سے 9 کے درمیان ہم شعر و شاعری کا پروگرام، اور اس میں سب کو انوائٹ کرتے ہیں جو بھی کوئی اپنا کلام سنائے. اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ یاد، یقیناً ان سب کا بہت شکریہ جو ناظرین ہم کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بے شک، ان سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور تھینک یو. اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ. اللہ حافظ.